حکومت نے آج پارلیمنٹ میں واضح کر دیا ہے پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں گے۔ حکومت نے کوئی لچک نہیں دکھانی، کوئی مذاکرات نہیں کرنے، اور اگر یہ 8 اکتوبر پہ نہیں مانتے تو پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ آج کی سماعت نے تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں۔ سماعت کا ووٹ جو ہے یہ شہباز شریف کو نئی زندگی دے گا۔ سپریم کورٹ کو بھی واضح پیغام ہے کہ پارلیمان اب بھی شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔ 3 رکنی بینچ اور تحریک انصاف اور پی ڈی ایم اور پارلیمان ایک پارٹی، 2 سٹنگز کے بعد ہی تحریک انصاف جو ہے وہ یہ اعلان کر دے گی کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ کیا یہ 3 رکنی بینچ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے؟ اگر اس سرکار کمیٹی میں مدعو کیا جاتا ہے تو 3 رکنی بینچ کو تو وہ آ جائیں گے۔ 3 رکنی بینچ کے سر پہ عمر تا بندیال صاحب کتنا سپریم کورٹ چلا لیں گے؟ یہ 3 رکنی بینچ خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے۔ وہ آگے آپ کو لانگ مارچ ہوتا ہوا پھر نظر آ رہا ہے۔ اس میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے توہین عدالت پہ۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ آج وزیر اعظم نے پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد حکومت کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھی اب بھی سنجیدہ ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یا ابھی بھی ہیلے بہانوں سے کام لیا جائے گا؟ اسی حوالے سے ہم اندر کی اپڈیٹس جانیں گے مزمل صاحب سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اب جو ہے وہ سنجیدہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، یا پھر یہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو محاذ رائی کا سلسلہ ہے یہ ابھی تھمے گا نہیں، یہ جاری رہے گا؟ دیکھیں، حکومت نے آج پارلیمنٹ میں واضح کر دیا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں گے اور ملک کی باقی 3 اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ایک دن بھی پہلے انتخابات کرانے کے موڈ میں نہیں ہے، تو پھر یہ 8 اکتوبر والی ڈیٹ پر ہی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اب حکومت نے کوئی لچک نہیں دکھانی، کوئی مذاکرات نہیں کرنے، یہ تحریک انصاف کی مرضی ہے کہ وہ 8 اکتوبر کو مان لے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ 8 اکتوبر کو نہیں مانے گی اور کہے گی کہ جی آپ پہلے اگست میں کرا لیں، جولائی میں کرا لیں، ستمبر میں کرا لیں، تو میرا نہیں خیال کوئی ایک دن بھی پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے آج اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی سپریم کورٹ کی طرف سے محاذرائی پارلیمان کی جاری ہے، اور پی ٹی آئی سے جو مذاکرات ہیں وہ پی ٹی آئی اگر تو 8 اکتوبر پہ مان جائے تو کوئی معاہدہ ہو جائے، اور اگر یہ 8 اکتوبر پہ نہیں مانتے تو پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کو کوئی لچک دکھائے گی یا پی ٹی آئی کا کوئی موقف مانا جا سکتا ہے، اس لیے مذاکرات یک طرفہ ہیں۔ اگر تحریک انصاف نے حکومت کی بات ماننی ہے تو ضرور مان لے، اور اگر تحریک انصاف نے حکومت کی بات نہیں ماننی تو پھر یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، جس کے کبھی امکانات ہیں، کیونکہ کیا تحریک انصاف کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ 8 اکتوبر پہ مور لگا دے؟ وہ کیا واپس عدالت جائیں گے؟ تحریک انصاف کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں۔ فرض کر لیں تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے مذاکرات جو ہیں ناکام ہو گئے ہیں اور عدالت کے پاس جاتے ہیں، تو کیا عدالت کا آج کا موڈ یہ لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دے گی، حکومت کو گھر بھیج دے گی؟ مشکل سوال ہے۔ آج کی سماعت نے تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں۔ انہیں جو عمر عطا بندیال سے توقعات ہیں وہ آج تو پوری نہیں ہوئی ہیں، اور باقی 2 جج بھی خاموش رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنے 180 ووٹ دکھا دیے ہیں۔ پرائم منسٹر الیکٹ عمران خان نے 178 لیے تھے، جب الیکٹ ہوئے تھے تو شہباز شریف 176 تھے، تو ووٹ تو بڑے ہیں شہباز شریف کے آج۔ اور جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کا ووٹ لیا ہے، تو انہوں نے پی ٹی آئی کے کسی بندے کا کوئی ووٹ نہیں لیا، انہوں نے اپنا پی ڈی ایم کے ووٹ لیے ہیں اور دوسرے ہزار لوگ لیے ہیں۔ اس لیے یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ شہباز شریف کو نئی زندگی دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو بھی واضح پیغام ہے کہ پارلیمان اب بھی شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔
जी सोबिया। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वाज़ेह पैगाम है, तो इस बंद गली में फिर आगे क्या रास्ता रह जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की काफी ज्यादा जो है वो लग रहा था कि वो काफी स्लो मूड में थे। आज बर्फ काफी पिघली हुई नजर आई और कोई इतने 7 रिमार्क्स ने दिए, लेकिन एक रिमार्क्स बड़ा सख्त था कि हमारा 14 मई का फैसला अभी भी मौजूद है, जिसमें फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अभी भी उनके पास वो कह तो रही है कि ठीक है हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, हम जो है वो आपको हुक्म नहीं जारी कर रहे, हम सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहे, हम सिर्फ तजवीज दे रहे हैं कि आप लोग मुज़ाकरात कर लें और एक डेट जो है वो फाइनलाइज कर लें। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ, मतलब ये 3 रुकनी बेंच और तहरीक इंसाफ, हम इनको एक ही फरीक गिनते हैं। ये एक पार्टी है और पीडीएम और पार्लिमान एक पार्टी है। अगर मैं जरा ज्यादा वाज़ेह मंजरनामा करूं तो पीटीआई को 3 रुकनी बेंच की हिमायत हासिल है, पीडीएम को पार्लिमान की हिमायत हासिल है। अब पीटीआई की सारी तवक्कुआत 3 रुकनी बेंच के साथ हैं कि वो उनको 90 दिन में या 14 मई को इलेक्शन ले देंगे। पीडीएम की सारी तवक्कुआत पार्लिमान के साथ हैं कि अगर पार्लिमान पैसे नहीं देगी तो 14 मई को इंतखाबात कैसे होंगे बगैर पैसों के और मुजम्मिल बगैर साहब, आज की समाअत के बाद तो नहीं नजर आ रहा कि तो पीटीआई की तवक्कुआत जो है पूरी होगी। जब चीफ जस्टिस को जो है प्रपोजल दे रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये प्रपोजल आप मुझे मत दें। इसके बाद तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब तैयार नहीं है इस हवाले से। लेकिन आप देखिए ना कि अब मुझे ये लगता है कि 2 सिटिंग्स के बाद ही तहरीक इंसाफ जो है वो ये ऐलान कर देगी कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फर्ज कर लें 2 राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं मुज़ाकरात के, और उसके बाद ये होता है कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। क्योंकि एक सूरत तो यह है कि पीटीआई 8 अक्टूबर की डेट मान ले। अगर पीटीआई ने 8 अक्टूबर की डेट मान ली तो फिर तो एक अलग बात है, एक नया मंजरनामा पैदा हो जाएगा कि पीटीआई ने लचक दिखाई और जो कि बहुत मुश्किल है, 8 अक्टूबर का मानना बहुत मुश्किल है। अगर एक रास्ता पीटीआई के पास ये है कि वो 8 अक्टूबर की डेट मान ले, दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि वो ये ऐलान कर दें कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास बॉल चला जाएगा और तहरीक इंसाफ का ख्याल होगा कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो कोहर्सिव एक्शन लेगा हुकूमत के खिलाफ, पार्लिमान के खिलाफ। उसकी सफबंदी हुकूमत ने कर ली है, आज एतमाद का वोट ले लिया है, तौहीन पार्लिमान का कानून ला रहे हैं वो, और जजेस को इस्तेकाक कमेटी में बुलाने के कार्ड्स उन्होंने ओपन किए हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्ड दिखाया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ बड़े खतरनाक नताइज आ सकते हैं, पार्लिमान ने कहा कि अगर आपने वजीर आजम पर तौहीन अदालत लगाई तो आपके लिए भी खतरनाक नताइज आ सकते हैं, तो फिर तो पार्लिमान और इस 3 रुकनी बेंच की लड़ाई शुरू है ना, और उस लड़ाई में दोनों तरफ से अपने अपने कार्ड्स खेले जाएंगे। तहरीक इंसाफ इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर अपनी कितनी सियासत चला सकती है, ये तो 3 रुकनी बेंच ने भी देखना है कि वो कितना सियासी बोझ उठा सकते हैं। क्या ये 3 रुकनी बेंच वजीर आजम को घर भेज सकता है? वजीर आजम कहेंगे कि मैं तो पैसे देना चाहता था, पार्लियामेंट ने नहीं दिए। क्या वो काबीना को भेज देंगे? काबीना कहेगी कि हम तो पैसे देना चाहते थे, पार्लियामेंट ने दिए। तो क्या जो 180 अरकान ने आज एतमाद का वोट दिया है, ये तमाम 180 को तौहीन अदालत में सजा दे देंगे? मुश्किल नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 180 अरकान को दोबारा सजा। देखिए ना, आज 21 अरब रुपए का जो बिल था वो दोबारा पार्लियामेंट में पेश हुआ और दोबारा मुस्तरद हो गया, तो चौथी बार पैसे देने से इनकार किया है पार्लियामेंट ने। जो इनकार पार्लियामेंट कर रही है उस पर वजीर आजम या काबीना को घर कैसे भेजा जा सकता है? पार्लियामान ने वजीर आजम पर, अगर इस सरकार कमेटी में मदु किया जाता है तो 3 रुकनी बेंच को, तो वो आ जाएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो कहेंगे आर्टिकल 68 के तहत हमें इम्यूनिटी हासिल है कि पार्लियामेंट में किसी जज के कॉन्डक्ट पर बात नहीं हो सकती। वो बुलाएंगे, ये नहीं आएंगे, ये बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे, वो तो फिर लड़ाई बढ़ जाएगी ना। वो तो फिर एक महादराई वाली सूरत हाल है कि पार्लियामेंट कह देगी प्राइम मिनिस्टर को कि आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होना, पहले जज यहाँ पे आकर बात करें। तो देखना तो ये है कि क्या उमर अताब बंदियाल साहब इस लड़ाई को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई हालात अच्छे नहीं है। जो बेंच उन्होंने जमाल मंदुखेल और अतर मनिल्ला के साथ बनाया था वो समाअत नहीं कर सका। खबरें यही है कि जमाल मंदुखेल और अतर मनिल्ला के साथ चीफ जस्टिस का बेंच नहीं चल सका है।
क्या चीफ जस्टिस सिर्फ इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर के सर पे सुप्रीम कोर्ट चला लेंगे? आप देखें काजी फायद ईसा चैम्बर वर्क कर रहे हैं, उन्हें कोई केस नहीं दिया जा रहा। सरदार तारिक जो उनके पास सीनियर मोस्ट वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ नहीं रहे, उनको कोई बेंच नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर, कराची और क्वेटा रजिस्ट्रीज वीरान पड़ी हैं। तो एक 3 रुकनी बेंच के सिर पे उमर ताब बंदियाल साहब कितना सुप्रीम कोर्ट चला लेंगे? वो रोज बेंच बनाते हैं, तोड़ते हैं, कॉज लिस्ट बनाते हैं, तोड़ते हैं, बेंचेस के क़याम पर जजेस को एतराजात हैं। ऐसे में उमर ताब बंदियाल साहब बहुत कमजोर पोजीशन पर हैं। देखिए ना, आज सबको तवक्को थी कि उनकी सास की जो ऑडियो आई है उस पर उमर ताब बंदियाल साहब कोई बात करेंगे, कोई रिमार्क्स देंगे, कोई ऑर्डर करेंगे। लेकिन उमर ताब बंदियाल साहब ने उस पर तो कोई अटॉर्नी जनरल से बात ही नहीं की कि मेरी सास की ऑडियो आई है, आप उस पर क्या कहते हैं? पूछ लेते ना। अगर आज हिम्मत करते, जुर्रत करते, अटॉर्नी जनरल को कहते कि इस लीक ऑडियो पे रिपोर्ट पेश करें, गवर्नमेंट को कहते कि इस लीक ऑडियो पर आज तो वो सारी सियासी बातों से जो है वो उसको इग्नोर कर रहे थे। वो कह रहे थे सियासी मामलात से बेहतर है आप आईनी हवाले से बात करें, बस केस पे बात करें। नहीं तो फिर आईनी मामले पे भी बात नहीं की। आईनी मामला तो ये था कि आप पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा था 27 अप्रैल तक पैसे दिए जाएं वरना बड़े खतरनाक नताइज होंगे, तो पैसे तो नहीं दिए गवर्नमेंट ने। तो फिर आज वो खतरनाक नताइज सामने क्यों नहीं आए? आप मेरी बात समझे ना। जो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उमर ताब बंदियाल साहब को और इस 3 रुकनी बेंच को ब्रेक लग गई है, जो ब्रेक पहले नहीं लग रही थी। पहले तो ये किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, हवा के घोड़े पर सवार थे और इनका ख्याल था कि हम खशो खाचा की तरह सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाजा हुआ है कि वो कुछ भी बहा कर नहीं ले जा सकते। उनके आगे बड़े बंद बांध दिए गए हैं और उन बंद के आगे अब उमर ये 3 रुकनी बेंच खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज मुनीब अख्तर और इजाजुल हसन के मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकला। नहीं तो पहले तो हंस हंस कर कहते थे कि इसका मतलब है वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। पहले तो तबर्रे कसते थे पीडीएम के ऊपर, तो आज मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। आप पहले तो रिमार्क्स घर से लिख कर लाते थे पर्चियों के ऊपर कि हमने ये रिमार्क्स देने हैं जिससे पीटीआई को फायदा होगा और पीडीएम को नुकसान होगा। बाकायदा सियासी रिमार्क्स दिए जाते थे। तो आज तो चुप लग गई। और बंदियाल साहब भी आज जो है वो मुझे लगे मुफाहमत के चैंपियन लगे, और ऐसे लगा जैसे वो पाकिस्तान में मुफाहमत के दाई हैं। कल तक तो वो पाकिस्तान में मुजाहमत के दाई थे। कल तक तो वो लग रहा था कि मुजाहमत की सियासत शुरू ही उमर ताब बंदियाल से होती है। आज लग रहा है कि वो मुफाहमत के दाई हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर आया है ना उनके ऊपर। और उनको आज उन्होंने अभी तक शाम तक अपना ऑर्डर भी नहीं निकाला जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं। महीना गैर महीना मुद्दत तक समात भी मुलतवी की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उमर ताब बंदियाल साहब को पता है कि मुज़ाकरात के कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं है। उनकी उमर ताब बंदियाल की एक ही बचत है इस 3 रुकनी बेंच की। अगर तहरीक इंसाफ ने इस 3 रुकनी बेंच की इज्जत बचानी है तो वो 8 अक्टूबर पर मोहर लगा दे। अगर वो 8 अक्टूबर में मोहर नहीं लगाती हैं तो फिर वो इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल देंगे जो बोझ ये उठाने के काबिल नहीं है ये 3 रुकनी बेंच। और ये बात पीटीआई को मालूम है। मुजम्मिल साहब, ये प्रेशर और ये सियासी जो मायूसी है, इस सिचुएशन में तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है तहरीक इंसाफ के पास, और वो है सड़कों की सियासत का। वो आगे आपको लॉन्ग मार्च होता हुआ फिर नजर आ रहा है। 2 लॉन्ग मार्च करके देख लिए हैं पीटीआई ने। पहला 25 मई को जब उनकी पंजाब में हुकूमत नहीं थी, केपी में हुकूमत थी, वो पेशावर से चले थे, क्या हुआ? अटक के पुल पे उनके साथ क्या हुआ? पीछे क्या हुआ? कंटेनर लग गए। उसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो सुन नहीं रहे क्योंकि वो 25 मई के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की थी। और 6 महीने से वो केस, वो मई से 25 मई के बाद अब अप्रैल आ गया, वो केस वो लगा ही नहीं रहे हैं दोबारा। हालांकि उसमें इमरान खान को सजा हो सकती है तौहीन अदालत पे। तो मैं नहीं समझता। दूसरा, उन्होंने ये फिर जो लॉन्ग मार्च किया, जब वजीराबाद वाला वाकया हुआ और पिंडी रोका, उसको इस्लामाबाद ले जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वो कहते थे कि ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है, लेकिन वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस्लामाबाद एंटर भी होते। उन्होंने उसको पिंडी खत्म कर दिया। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को कि जब अब केपी में भी हुकूमत नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, कहीं भी उनकी हुकूमत नहीं है, कश्मीर की हुकूमत भी उनसे निकल गई है, तो वो कोई लॉन्ग मार्च या कोई बड़ी का एहतजाजी कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो चुकी है, लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो गए हैं, धरना वो दे नहीं सके हैं। तो और खुद वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में इतने फिक्रमंद हैं कि कहीं बाहर निकलने को तैयार नहीं।
मीनार पाकिस्तान में बॉम्ब प्रूफ कंटेनर में बैठे थे, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च क्या करना है? वो तो इस वक्त किसी एहतजाजी तहरीक की क़यादत करने की पोजीशन में ही नहीं है। मौत का ऐसा खौफ है उनके ऊपर कि वो बाहर निकलते ही नहीं है जमान पार्क से। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई इस वक्त इस पोजीशन में है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर को 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे और वहां धरना दे देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। वो 5,000 बंदा नहीं इस वक्त खड़ा कर सकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई एहतजाजी तहरीक की पोजीशन में है। उनकी हुकूमतें चली गई हैं, सहूलतकारी मौजूद नहीं है। और ये सबसे बड़ा मसला है 3 रुकनी बेंच का, कि इमरान खान जो अवामी हमायत इस 3 रुकनी बेंच को देना चाहते हैं, वो देने की पोजीशन में नहीं है। बल्कि आप देखें, वकला तहरीक भी इमरान खान ने चलाने की कोशिश की, लतीफ खोसा, इत्तेजाज हसन और अजहर सदीक के जरिए। वो वकला तहरीक भी कोई कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हुकूमत के पास भी पाकिस्तान बार कौंसिल है, पंजाब बार कौंसिल है, इस्लामाबाद की बार है, बहावलपुर की बार है, सिंध की बार है। ज्यादा बार्स तो हुकूमत के साथ खड़ी हैं। पीटीआई के साथ तो सिर्फ एक लाहौर की बार खड़ी है, जिसे वो चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए भेज सके हैं, और उसको भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप मेरा कोई कन्वेंशन करा दें लाहौर में, जो अभी तक नहीं हो सका है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ कोई वकला की बड़ी तहरीक चला सकती है, कोई अवाम की बड़ी तहरीक चला सकेगी। इसलिए इस 3 रुकनी बेंच को ये बात समझनी है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक करेंगे इंसाफ इस सिचुएशन में कोई वकला की बड़ी तहरीक या लॉन्ग मार्च की तहरीक जो है वो नहीं चला सकती है। और सेकंड ये कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, खास तौर पे अब जब जो वजीर आज़म ने इत्तेमाद का वोट पार्लियामान से ले लिया है। और अगर हुकूमत मानेगी भी मुज़ाकरात के लिए, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात होगी, और वो है 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में इलेक्शन। और अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इस शर्त पे मान जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़।